Welcome in 11th class physics students. In previous video, we discussed about the definition of physics, branches of physics, and also we discussed the relation of physics with other branch of sciences. And last one we discussed about the relation of physics with the society. Okay, so with these topics we have already discussed in the last previous classes. Today we will discuss with you an important topic, that is fundamental forces in nature. Beta, first question arises that what is the meaning of fundamental. So beta, simply I will tell you that fundamental means those forces which are not created by us, या हमारा कोई इसमें रोल नहीं है. These forces already exist in nature and these are given by the nature to us. Okay, so these are if these forces do not exist, then we can say that this world does not exist. ठीक है. तो how many fundamental forces exist in nature? So definitely I will say that generally we have four fundamental forces. First one is you have studied, that is gravitational force. I think you have discussed, you have studied about gravitational force in short classes at lower level. Gravitational forces, gravitational force, electromagnetic force, ओके. दिस इज कुलाम्स फोर्स भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो दीज आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेज विच एग्जिस्ट इन नेचर. ठीक है, दीज फोर्सेज already exist in nature, given by nature to us, and so we can say that these are the fundamental. Now the next motto of our is that we will discuss these forces in detail by one, and also we discuss about the properties of these forces, importance of these forces, and last one we will compare all the forces in give by using a table. Now the first force is that is gravitational force. Let's start with gravitational force. And as you know, gravitational force, this force is predicted by it is given by Newton's law of gravitation. ये न्यूटन्स ने दिया था बेटा ये. तो न्यूटन्स क्या कहते हैं कि all particles exert a gravitational force of attraction upon one another due to their masses. You can say that every object in this universe attract another object. Every object in this universe attract another object due to their masses by a force is called gravitational force. Okay, so this force is predicted by firstly Newton, so this is also called Newton's law of gravitational. Okay, so every object in this universe attract another object due to their masses by a force. That force is called gravitational force. Okay, or this force is given by Newton's, so this is also called Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Okay, now according to Newton, if we have two bodies which having masses m1 and m2, if we have two bodies having masses m1 and m2, and if they are separated by a distance small r, okay, then both forces will exert force on each other. One attract second and second attract first. Okay, so we can say that both forces F12 and F21 exert on each other. F12 means force on first due to second, F21 means force on second due to first. Okay, so this force, magnitude of this force we can find by using the formula. Newton says that this force
magnitude of this force is directly proportional to the product of the masses. More is the product of the masses, more will be the gravitational force. Last one, this force also varies inverse square law, यानी कि force between the two object is inversely proportional to the square of the distance. So according to Newton, if we combine both forces, we can write like this one, m1 m2 by r square. If we open the sign of proportionality, so Newton introduced a constant that is capital G, m1 m2 by r square. What is capital G here? Capital G is gravitational constant. ठीक है जी, इसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो भाई इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो. ये फिक्स रहेगा बेटा, दिस विल बी फिक्स. और इसकी जो वैल्यूज़ है वो छोटे क्लासेज में हमने लिखी है बेटा. कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जो आपने रखनी है याद. ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है भाई, मोर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, मोर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड कीप इन माइंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. This is not repulsive forces because I already told you in the definition that each body due to their mass attract another body. Okay, so how much force they will attract by another body, that is given by Newton's law of gravitation. F is equal to G m1 m2 by r square. Here I told you. Okay, so beta if you know the two bodies masses and the gap between the two body by putting the value of capital G here, then we can find the force by which a body attract another body. This is also called Newton's law of gravitation. Okay, so this is very simple force. आप इसमें बात कर भी सकते हो. अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स. इस फोर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेटा 1 by 1 मैं आपसे बताऊंगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है बेटा, दिस इज़ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. तो इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर. दिस फोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव नहीं हो सकती. बस एक बात तो ये नोट कर ले, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ओके, नॉट रिपल्सिव. सेकेंड वन, इट इज़ वीकेस्ट फोर्स. इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. आउट ऑफ द फोर फोर्सेज सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है बेटा. देख लीजिए, क्योंकि जो फोर्स है अगर हम देखा जाए m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो फोर्स क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. तो अगर सन और मून के बारे में बात करें या अर्थ और सन के बारे में बात करें तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उनके बीच में फोर्स तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट दिस इज़ अ वीकेस्ट फोर्स. क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स है बेटा. ये आपको याद करें. अच्छा, दिस फोर्स काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्स है. देखो, दिस इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करती है. देख लीजिए, सन और अर्थ के बीच में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप ये कह सकते हो कि इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स बेटा. इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है बेटा? देख लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? नीचे है ना, तो इस इनवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करती है? ओबे करती है. ठीक है, तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है भाई? दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स. इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई. इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स. अब क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है? तो सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. देखो, एक बॉडी m1 है, सेकंड बॉडी m2 है. इन दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है ये. ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा. लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस, सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स बेटा. ठीक है, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स. 6 प्रॉपर्टी क्या है भाई? इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स बेटा. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि दिस फोर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है ना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलवेज कंजर्वेटिव रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. ठीक है जी. और लास्ट वन है, फील्ड पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटोन. ये याद रखना, इसका जो फील्ड पार्टिकल है वो कौन है भाई? ग्रेविटोन है. ठीक है, मैंने आपको नोट्स में भेज दिया है.
फील्ड पार्टिकल इज ग्रेविटोन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल बिटवीन द टू बॉडी एक्सप्लेन हाउ द टू बॉडीज इंटरेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस बेटा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। और बेटा ग्रेविटेशन फोर्स की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। देखो जो सन और अर्थ के बीच यानी कि जो डे और नाइट बनते हैं वो इसी फोर्स की वजह से बनते हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो अर्थ और सन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो नहीं रहेगी और अर्थ सन के अराउंड रोटेट नहीं कर पाएगी। जो सी है समुद्र सी के अंदर जो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जाते हैं, तो वो भी इसी वजह से आते हैं बेटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अर्थ पे चल पाते हैं तो वो इसी फोर्स की वजह से चल पाते हैं। तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स फंडामेंटल फोर्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।